لهيك أنا رح أقلك من هلأ إذا نحن ما منتزوج خلال هاي السنة ساعتها رح أتزوج بنت تانية. أكيد عرفتي إني عم كذب عليكي. ايه بعرف إنك عم تكذب علي. إيه، بعدين أنا كمان كنت رح أقلك إنه كل شي قلتلك إياه كان كذب وما له أي أساس. بعدين مثل ما فهمتي علي، أنا كمان بعرف إنك ما كنتي عم تحكي لي الصدق، أنت كمان كنتي عم تكذبي علي. كافيا، بعتقد نحن صرنا بنعرف بعضنا وكتير منيح، مشان هيك فيكي تحكي لي هلأ كل شي عم بيصير معك. احكي لي لشوف، قولي لي شو صاير. الحقيقة فارون، شوريا زعلان مني ومعصب علي. هو مفكرني وقفت مع راجفير وتركته. يعني انت ليش متضايقة كل هالقد من هذا الشي؟ أنا هون معك ورح أبقى لآخر عمري معك. أما بالنسبة لشوريا بظن انت صرتي تعرفيه منيح. صحيح بيعصب وبيزعل بسرعة، بس بالمقابل بيرجع وبيرضى بسرعة. بعرف هالشي، بس أنا ما بحب شوفه متضايق هيك. بزعل كتير لما شوفه بهي الحالة. أنا مقدر وضعك وفهمان عليكي. انت عطيه شوية وقت، كلهم كم ساعة وأكيد رح يرجع لطبيعته. متأكد؟ متأكد 100%. انت لا تشغلي بالك بهيك قصص وريحي حالك، وإذا حسيتي حالك متضايقة أو حابة تحكي أو بدك تحكي لي شي دقي لي فوراً، ماشي؟ أنا ما بحط تليفوني صامت، لهيك رح رد عليكي إمتى ما دقيتي، حتى لو اتصلتي وش الصبح. ماشي فارون، شكراً. تصبح على خير. وانت بخير، انتبهي على حالك. باي باي. نيدي، أنا سألتك سؤال، احكي الحقيقة. نيدي ردي علي. شو بدي جاوبك؟ شو لازم أحكي لك؟ حقيقة شو بدك تسمع؟ شو عم تعملي بالمكتب؟ كان بدي أسألك عن شغلة. اسألي. حدا اليوم إجا لعندك؟ أنت اللي لازم تحكي. شو عم تخبي عني؟ يلا قول، شو اللي عم تخبيه وليش عم تخبي؟ أنت بدك تضيع علي شقة عمري كاران؟ يلا قول، ليش سكتت؟ أنت بدك تاخد مني كل شي؟ ليش ما بتخبرني شو مخبي عني؟ عن جد غريبة، بكون أنا يلي عم بسألك شو عم تخبي وبدل ما تجاوبيني بتصيري بتسألي أنا مخبي عليكي؟ شو رح خبي مثلاً؟ كيف حسيت؟ مو حسيت بشي غريب؟ غريبة إنه الواحد يكون مخبي عليك شي ويجي هو ويسألك أنت شو اللي عم بتخبي عنه؟ رجاءً قومي بريتا، فتحي عيونك، اطلعي فيني بريتا، بترجاكي لا تتركيني بريتا. نيدي، نحن مرات في شغلات بتصير ما بنقدر نحكيها لأنه الواحد ما بيكون متأكد إذا كان هذا الشيء صح، وأوقات كتير يلي منشوفه ما بيكون صح، ويلي ما منشوفه أو ما منعرفه منصير منتعرف عليه. أما بالنسبة لكلامك هاد إني مخبي عليكي شي، هذا الحكي ما له أساس، وأنا بأكد لك إني ماني مخبي عليكي شي. وهلأ نحن بالمخفر ومو وقت هذا الحكي، نحن جايين لنشوف المحقق. تعالي معي يا أما خليكي هون.
What the hell? प्रीता तो अंदर गई है और अब ये भी इंस्पेक्टर से मिलने जा रहा है। प्रीता को देखेगा, उससे मिलेगा, प्रीता बोलेगी वो राजवीर की माँ है और करण को पता चल जाएगा कि राजवीर उसी का बेटा है। उस पे झूठा इल्जाम लगा के उसे जेल भिजवा दिया। राजवीर तुम्हारा? हाँ, मेरा बेटा है। लेकिन सृष्टि तो बोल रही थी राजवीर उसका बेटा है, प्रीता बोलती है उसका बेटा है। दोनों का बेटा कैसे हो सकता है? ये सब मैं बाद में देखूंगी। अभी तो सबसे पहले मुझे करण को रोकना है, सो दैट ये प्रीता से ना मिल सके। तुम लोगों को क्या लगता है ये सब मेरे हाथ में है? देखो अपनी माँ को कब से जाने क्या क्या बोले जा रही हैं। और एक मिनट, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी माँ है कौन? ये तुम्हारी माँ है? हाँ हाँ हाँ। तो फिर जिसको हमने अरेस्ट किया वो कौन है? वो तो इसकी माँ है। मतलब इसकी दो माँ है? हाँ, वो एक्चुअली एक माँ जिन्होंने मुझे पाला और एक जिन्होंने मुझे जन्म दिया। सृष्टि ने भी तुझे पाला है पागल। अच्छा ठीक है, ओके। कुछ और बताओ अपने बारे में, मुझे आगे बताओ। अब मैं लूथरा इंडस्ट्रीज के लिए काम करता हूँ। आई थिंक तुम्हें ये बोलना चाहिए कि तुम उनके लिए काम करते थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कल से वो लोग तुम्हें बुलाएंगे। वो क्या नहीं बुलाएंगे? हम खुद नहीं जाएंगे। अगर राजवीर ने कहा कि उसे जाना है तो भी मैं उसे जाने नहीं दूंगी, रोक दूंगी। एक्चुअली सर, मुझे तो पहले ही रोक देना चाहिए था जब उन्होंने इसे ऑफर लेटर दिया था, पर तब मैं बहुत खुश हुई। मुझे लगा इतने बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा ऑफिस है और राजवीर का फ्यूचर, उसका करियर सेट हो जाएगा। अगर तभी मैं इसे रोक देती ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती, हमें ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में इतने बड़े ऑफिस को जो लोग चला रहे हैं उनके दिल इतने छोटे से हैं। फंसा दिया मेरे बेटे को। एक मिनट, आप कह रही हैं कि इतनी अच्छी जॉब थी, इतनी अच्छी कंपनी, सब कुछ जब इतना अच्छा है तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लोग राजवीर को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? शौर्य की वजह से। भगवान जी प्लीज कुछ ऐसी प्लानिंग शानिंग कर दो कि वे लूथरा हाउस पहुंच ही ना पाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लूथरा हाउस जाए। भगवान जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। आपको तो पता है ना ये लूथरा परिवार पूरा कैसा है। उन लोगों के सिरे में दिल नहीं है, पत्थर है पत्थर। भगवान जी प्लीज हेल्प मी आउट, प्लीज 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 कुछ ऐसा कर दो कि दीवाने जब। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं तुम्हें मुझसे फ्रेंडशिप तो नहीं करनी है? देखो मैं दिखती बड़ी कूल हूँ लेकिन मैं बहुत डेंजर हूँ, डेंजर। और वैसे भी मैं यहाँ पे लाइफ टाइम थोड़ी रहने वाली हूँ। 1 घंटे में बाहर निकल जाऊंगी, 1 घंटे में। मेरे दी ने सब मैनेज कर लिया है। अच्छा है, तुम बहुत किस्मत वाली हो। किस्मत वाली? आज किस्मत ही तो साथ नहीं दे रही है मेरा। देखो ना, अब मुझे और मेरे बेटे को जेल में डाल दिया जबकि हमारा कोई कसूर ही नहीं है। झूठे इल्जाम में मेरे बच्चे को फंसाया है और ये सब किया है मेरे बेटे के डैड ने। मतलब तुम्हारे पति ने? नहीं, मेरे पति ने नहीं, अरे मेरे बच्चे के डैड ने। मतलब तुम्हारे बेटे का डैड तुम्हारा पति नहीं है? मतलब तुम शादी के बिना ही बेटा? हे भगवान, क्या बोले जा रही है? अरे अब हर किसी को एक्सप्लेन थोड़ी करते बैठूंगी कि ये रिश्ते इतने उलझे हुए हैं कि तू टेंशन मत ले, तू बैठ जा। वैसे भी मुझे मेरे प्रॉब्लम और मेरे हाल पे छोड़ दे प्लीज। करण जीजू, अब वैसे क्यों नहीं निकले जैसा मैंने आपके बारे में सोचा था? जो नहीं सोचा था आप वैसे क्यों हो गए? एक्सक्यूज मी, ये इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं आप? अपने डेस्क पे होंगे। डेस्क पे? ये आवाज तो करण जीजू जैसी है। ये वही आवाज है, उनके रिसेंट इंटरव्यूज में सुना था मैंने। यही आवाज थी। उनकी आवाज पहचानने में मैं धोखा नहीं खा सकती। ये उन्हीं की आवाज है, वही है। डेस्क पे? लेकिन डेस्क पे तो नहीं है वो। तो अपने कैबिन पे होंगे। किस तरफ है? और इस तरफ। ओके, थैंक यू। करण जीजू यही है,
मेरे सामने। अभी पूछती हूँ इनसे, इन्होंने ये सब क्यों किया? पहले मेरी दी के साथ गलत किया और आज राजवीर के साथ। इन्हें जवाब तो देना पड़ेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। यही है इंस्पेक्टर का कहना है। नहीं, जरूरी थोड़ी है कि शौर्य की वजह से। तो बच्चा है वो इतनी बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर सकता है। जो काम उन्होंने किया है ना सर, वो हम नहीं करेंगे। जब तक सब चीजों का पता नहीं लग जाता हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाएंगे। लेकिन जो एक फीलिंग की बात होती है उसके हिसाब से कह रही हूँ कि मुझे शौर्य तो नहीं लगता है। वो फिर भी अच्छा लड़का है, लेकिन अगर आप हमसे पूछे तो उसकी जो मॉम है अभी बाहर थी, वो मुझे ठीक नहीं लगती। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि उन्हीं का काम है, उन्हीं ने फंसाया राजवीर को। शौर्य ऐसा काम नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है वो। I mean, आप दिल से सोच रहे, दिमाग से नहीं सोच रहे। और हर अच्छा दिखने वाला इंसान दिल का अच्छा नहीं होता है। जस्ट बिकॉज आप दिल के बहुत ज्यादा अच्छे हो, आपको हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो दिखने में ही बुरा है और बातें ही बुरी कर रहा है, हरकतें ही बुरी कर रहा है, वो तो बुरा हो सकता है ना। देखा नहीं उसकी मॉम जब देखो थप्पड़ लगाने आ जाती है। शौर्य का काम नहीं लग रहा है मुझे। इतना भी खराब नहीं है वो, इतना भी गलत नहीं है कि इतनी बड़ी चीज में तुझे फंसा देगा। ये कहानी सुन के मुझे लगता है कि बात कुछ और है। बदले की कहानी तो नहीं। और मैं सोचता हूँ किसका बदला, कैसा बदला? राजवीर बहुत अच्छा है, किसी के लिए गलत सोचता तक भी नहीं है। उससे कौन बदला लेना चाहेगा? हो सकता है साहब। राजवीर तुझे क्या लगता है? तुझे लगता है कि कोई तुझसे बदला लेना चाहता है या तुझे फंसाने के लिए ये सब कुछ प्लान किया है? पता नहीं। ऑफिस में काम करता है, काम करते करते अननोइंगली किसी से झगड़ा तो नहीं मोल ले लिया था तूने? एक बार तूने कहा था ना कि कोई बिडिंग हुई थी और कोई राइवल कंपनी हार गई थी, कहीं उनकी वजह से तो नहीं? करेक्ट, ये बदले की कहानी हो सकती है। आपकी वजह से लूथरा को लॉस हुआ तो बदला तो बनता है। हाँ, ये बदला भी हो सकता है। I mean, उस दिन कॉन्फ्रेंस रूम में मैंने शौर्य को सबके सामने वीक दिखाया था। जो फैसला शौर्य को लेना था वो फैसला मैंने ले लिया था। तो हो सकता है उसका बदला लेने के लिए शौर्य ने ये मेरे साथ किया। एक तो ये तुम दोनों का झगड़ा कभी खत्म होगा या नहीं? हर बात पे शौर्य 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 करता रहता है। मुझे नहीं लगता है। अगर ये बात लूथराज की वजह से हुई है तो शौर्य से ज्यादा शक मुझे उसकी मॉम पर है। ओह, आप आ गए। आप 5 मिनट इंतजार कीजिए, मैं बाहर ही आता हूं। ये अजीब सा एहसास क्या हो रहा है मुझे? क्या हुआ है? होवे जानिया जी दे जानिया
जिंदड़ी दे जानिया होवे जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया होवे जानिया। इश्क को जीने मरने के तराजू में ना तोल रे। इश्क करे जो वो ही जाने। Oh God, करण यहाँ इंस्पेक्टर के कैबिन के बाहर और अंदर प्रीता। अगर इसने प्रीता को देख लिया तो ओ नो, क्या होगा? इश्क बड़ा तू हाँ इश्क बढ़ाया तू जब दिल ने रब से पूछा तेरी अखियों से दिया जवाब। इश्क दा रुतबा हो सबसे ऊंचा। निधि क्या हुआ, क्या है, क्या हुआ है? वो एक्चुअली वो लॉयर का नंबर मिल गया है मुझे, मेरे पास ही है। लेकिन क्या इतनी बात क्या है? तुम इतनी परेशान लग रही हो, इतनी डरी हुई लग रही हो, क्या हुआ, क्या है? अब वो निधि देखो, तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। क्या छुपा रही हो मुझसे? बोलो निधि, तुम बता सकती हो मुझे क्या हुआ है तुम्हारे साथ, बोलो। वो एक्चुअली मुझे ना थोड़ा हेडेक हो रहा है। रियली? तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है तो मेडिसिन चाहिए हैं? निधि, तुम्हारे दर्द सर में हो रहा है लेकिन तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है तुम परेशान हो, डरी हुई हो, तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज देखो अपनी, बोलो क्या हुआ? वो एक्चुअली थोड़ा सफोकेशन भी फील हो रहा था। बाहर चल के थोड़ा फ्रेश एयर ले ले प्लीज। बाहर चले? चलो चलो आओ। चल रहे हो ना? हाँ चल रहा हूँ। अभी मैं इंस्पेक्टर के कैबिन में गया था, वहाँ पे ऑलरेडी 2 लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5-10 मिनट लगेंगे उनसे बात करने में, जब तक वो बाहर नहीं आते तब तक हूँ मैं तुम्हारे साथ। आओ। That means करण ने उन दोनों को नहीं देखा। Thank God, अच्छा है नहीं देखा। सर, इतना तो आप समझ गए हैं ना कि ये बदले की बात है। कोई राजवीर से बदला लेना चाहता है, इसलिए उसने राजवीर को फंसाया है। तो अब कम से कम उसे छोड़ तो दीजिए। जी मुझे समझ में आ गया है, मैं आपकी बात मानता हूँ और मुझे विश्वास भी हो रहा है। थैंक यू। देखा, मैंने कहा था ना, हम इन्हें समझाएंगे तो ये समझ जाएंगे। देखिए मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन सीनियर इंस्पेक्टर को भी तो समझाना होगा ना। वो अभी आने वाले हैं, उसके बाद वो अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन आप तो समझ गए हैं, तो आप उन्हें बस बता दीजिए वो कब आएंगे, कब बात करेंगे। ये तो बहुत लंबा चक्कर पड़ जाएगा। देखिए ये इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, ये आपने अपनी ओर से एक कहानी सुनाई और मैंने सुनी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होता है सबूतों के आधार पर, और सबूतों के आधार पर ही तय होता है कौन सही है और कौन गलत। निधि, क्यों हो परेशान, क्या हुआ? नहीं। निधि प्लीज झूठ मत बोलो, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ, अंदर तुम्हारे पसीने छूट रहे थे। क्या हुआ? क्या छुपा रही हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है करण, इट्स ओके। निधि तुम नर्वस हो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम नर्वस हो। तुम वैसे नर्वस नहीं होती, लेकिन जब भी कुछ छुपा रही होती हो ना, तब तुम नर्वस होती हो। कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम मुझे बता नहीं रही।
बताओ क्या छुपा रही हो? बताओ निधि, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुमने ही कहा था ना करण थोड़ी देर पहले कि कुछ बातें बताई नहीं जाती, क्योंकि हम श्योर नहीं होते कि हमने जो देखा है वो सही देखा या नहीं। ऐसे मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मैंने जो देखा वो कितना सही था। मैंने जो समझा वो कितना सही था। इसलिए अभी मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकती। बता जब श्योर हो जाऊंगी तो डेफिनेटली बताऊंगी। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। राधा, सृष्टी को बाहर ले आओ। पाटिल, यस सर। तुम्ही मोहितला घेऊन ये। ओके सर। और कोई अपडेट? यस सर। सर ये राजवीर अरोरा है, लूथरा फैमिली ने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया है, इसलिए अरेस्ट किया गया है। इसे दूसरे सेल में डालो, सलाखों के पीछे। सर। क्या हुआ? आप राजवीर को छोड़ नहीं रहे? सर वैसे तो शौर्य लूथरा कंप्लेंट करके जा चुका है, लेकिन उसके पेरेंट्स भी आए थे। पेरेंट्स भी आए थे? मतलब करण लूथरा कहाँ है वो? मुझे उनसे बात करनी है। नहीं माँ, हमें लूथरा से कोई बात नहीं करनी। तू चुप हो जा। देखा, तुझे छोड़ भी नहीं रहे। मुझे उनसे बात करनी है। कहाँ है वो? यहीं है कि? अभी तो यहीं थे सर, वो बाहर गए हैं। बाहर गए? माँ रुकिए, माँ उनसे बात नहीं करनी है, रुकिए। मुझे ऐसे लोगों से ऐसी नफरत है जो पुलिस स्टेशन में चीखते चिल्लाते हैं। घेऊन जायला। सर चल। रुकिए सर, एक सेकंड। मोहित। सृष्टि माँ, वो माँ बाहर गई हुई है और वहाँ बाहर करण लूथरा भी है, तो आप उनको जाके रोकिए। उनकी बात, मेरी बात, पूरी बात ही सुन के नहीं गई। अब अच्छा मुझे बोलना, मैं हूँ यहाँ पर। क्या हुआ मुझे बता। एक सेकंड, मैं ये बोल रहा हूँ कि बाहर ना माँ को बाइक में बिठा और यहाँ से लेकर जा। कुछ भी बहाना दे दे, बोल दे कि तेरी मम्मी गुरप्रीत आंटी ना सीढ़ियों से गिर गई, उनको चोट लग गई है, और ये बोल के तू ले जा। मैं ना अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब उन्हें ये पता चलेगा ना कि तेरी माँ को चोट लगी है, तो करण लूथरा को भूल जाएंगे और तेरे साथ आ जाएंगी। तू बस ले जा, कोई भी बहाना दे दे, ठीक है? मोहित प्लीज। ठीक है, अंदर लॉकअप में डालो इसको। जी साहब। कहाँ गए वो लोग? इंस्पेक्टर ने तो कहा था कि बाहर ही है। अब बेटर फील कर रही हो? अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगता है करण तुम्हारे मुंह से ये सुन के कि तुम्हें मेरी फिक्र है। बस इतना भी पूछ लेते हो ना कि मैं बेटर फील कर रही हूँ, मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। मतलब मैं तो बस कैजुअली तुमसे पूछा। ये सवाल तो मैं दिन में 10 बार लोगों से पूछता हूँ कि क्या तुम सही फील कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो। इसमें इतना सीरियस होने वाली कौन सी बात? ऐसे क्यों करते हो करण? क्यों मेरे साथ ऐसे करते हो? मतलब अगर मुझे थोड़ी सी खुशी मिल रही है किसी बात से, तो तुम्हें वो क्यों नहीं पसंद? मैं अगर थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? एटलीस्ट झूठ ही बोल दो कि हाँ निधि, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैंने इसलिए तुमसे पूछ लिया था। वो रे, सुनिए। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? करण के पास। करण? हाँ, वो करण लूथरा, शौर्य के डैड।
उनसे बात करना चाहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है वो हमारी हेल्प करेंगे और राजवीर को बाहर निकलवा लेंगे। और एक मिनट, कौन करण लूथरा? अरे वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, वो कोई और ही अजनबी इंसान है। आप करण कर रहे हो। करण लूथरा नहीं है वो। दी आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, इधर आओ, चलो। नहीं सृष्टि, उन्हें पहचानने में मुझसे गलती नहीं हो सकती। वो वही है। हाँ, मैं उन्हें ठीक से जानती नहीं हूँ, लेकिन उनका चेहरा बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। वही करण लूथरा है और वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। अरे देख क्या हुआ? ठीक हो ना तुम? हाँ। होश तो नहीं आई? थोड़ा सा लगा। देख, तू भी चल मेरे साथ। नहीं, चल एक मिनट। अरे सुनिए, मेरी बात तो चलिए चलिए साथ में चलिए, जल्दी चलिए। कहाँ चलिए? नीता जी जल्दी बाइक पे बैठिए, बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई घर पे। मम्मी गिर गई है और उन्हें बहुत चोट लगी है वहाँ पर, और उनके पास और कोई है नहीं वहाँ पर, तो आप चलिए ना जल्दी। उन्हें चोट लगी? हाँ। अरे कैसे गिर गए, क्या हो गया बता दे। चल, लग गई है उन्हें। आप लोग जो, मैं ऑटो लेके आती हूँ। सुनो ना। अरे सुनो, जल्दी आ जा। ऑटो। अरे मेरी बात सुनिए, आपने बुलाया था आपने मुझे। ये तो चली गई। कौन चली गई? वो कौन थी? कुछ नहीं, वैसे ही मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे बुलाया था। चलो अंदर। हाँ? आ गया तू? हाँ जी, लेकिन तुझे क्या हुआ है? तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? ये सब बातें छोड़ो यार, कोई मेरे लिए बियर ले आओ प्लीज। यार मैं तो कहता हूँ बियर पीना छोड़ दो। अभी घर जाएंगे, डैड क्या कहेंगे? डैड बहुत गुस्सा करेंगे। किसने बोला मैं घर जा रहा हूँ? मतलब ये कि मैं आज घर नहीं जा रहा, शायद मैं आज यहीं सो जाऊं। तो तू क्या सीधे पुलिस स्टेशन से आ रहा है? तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये सवाल पे सवाल क्या लगा रखा है? ये इंटेरोगेशन क्या है? तुम लोग ने पुलिस ज्वाइन कर ली है क्या? कहां से आ रहा हूं, क्यों आ रहा हूं, कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं? यार मेरा मूड बहुत खराब है, मैं घर से आ रहा हूं। अगर तुम लोग को भी ना मेरे मूड की बैंड बजानी है यहाँ पर, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अरे यार प्लीज, नाराज क्यों हो रहा है? अरे हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे यार। एक्चुअली यार आई गॉट टू नो बहुत सारी चीजों के बारे में, तो बस तेरे से बात कर रहे थे, कोई इंटेरोगेशन नहीं कर रहे थे। और यार तू ऐसे हाइपर मत हुआ कर यार, तेरे से बहुत डर लगता है मुझे। अरे चिल यार गाइस, तुम लोग को पता है ना मेरा मूड खराब होता है तो मैं कैसे बिहेव करता हूँ। मैं बहुत खराब मूड में हूँ। जस्ट गेट मी अ बियर। चिल करो, मैं जाके लेके आता हूँ चिल्ड बियर। Head's bursting. चल सैंडी गया, अब तेरे कुछ बताना है तो अभी बता दे। कुछ भी बात है तो बोल दे। मुझे कुछ नहीं बताना, प्लीज चुप रहे। अरे शौर्य, तेरे हाथों में इतनी चोट कैसे लग गई? यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? अभी तुझसे कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी, तू चुप नहीं रह सकता क्या? सॉरी यार, वो तेरे हाथ में खून निकलता हुआ देख के पूछ लिया, सॉरी। ये लो गाइस, चिल्ड बियर, लेट्स चीयर्स। मुझे नहीं पीनी यार, जस्ट लीव मी अलोन गाइस। चलो मेरे साथ, अभी के अभी डैड को बोलो कि आप राजवीर को जेल से नहीं निकालना चाहते। आपका भाई मैं हूं, वो राजवीर नहीं। मैं तुम्हारे या किसी और के कहने पे वो नहीं करूंगी जो मुझे नहीं करना है। तुम काव्या से इसलिए अपसेट हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि काव्या राजवीर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, और काव्या तुमसे इसलिए अपसेट है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि राजवीर और तुम्हारे बीच में जो भी लड़ाई है वो तुम्हारे पास की कड़वाहट की वजह से है। आई जस्ट होप मिस्टर लूथरा माँ को देखे इससे पहले मोहित माँ को यहाँ से ले जाए। हेलो इंस्पेक्टर, हाय, आई एम करण लूथरा। हेलो, मैं निधि हूँ। हमें इसके खिलाफ रिपोर्ट फाइल करनी है।
वैसे आप इसे अरेस्ट तो कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी कितनी बार कहा है कि मुझे सामने वाले सेल में कोई नहीं चाहिए। संगीत करता है का? क्रिमिनल्स को रात भर देखना मुझे पसंद नहीं है। इंस्पेक्टर क्रिमिनल नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो करण? निधि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। क्यों क्रिमिनल बुला रहे हो इसको? जो भी इसके ऊपर चार्जेस लगे अब तक प्रूव नहीं हुए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, सो व्हाई कॉलिंग मी क्रिमिनल? देखिए इंस्पेक्टर, वैसे भी आपने ये सेल बनवाया तो किसी ना किसी को तो यहाँ पे रखा ही जाएगा ना। अब राजवीर रहे या कोई और रहे, इसमें शाउट करने वाली क्या बात है? एनीवेज ये सब छोड़िए, हमें केस फाइल करना है, आप रिपोर्ट लिखिए। वाओ मिस्टर लूथरा, दैट्स ग्रेट। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल करके गया आपका बेटा मुझ पर। अब इससे बड़ा और कौन सा केस है जो आप मुझ पे फाइल करना चाहते हैं? अटेम्प्ट टू मर्डर? जी हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर। आपके बेटे शौर्य ने फाइल किया ये केस मुझ पर। ये उस दिन की बात है जिस दिन मैं अरेस्ट होते होते बचा था और शौर्य की बड़ी माँ ने मुझे बचा लिया था। निधि ये बात गलत है, शौर्य ने बहुत गलत किया। राजवीर ने मेरी जान बचाई है कई बार। और वैसे भी उस दिन मॉम ने कहा था ना, इस बात को यहीं पर रफा दफा कर दो, इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। तो फिर इस बात को क्यों उछाला जा रहा है? इंस्पेक्टर आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये राजवीर के ऊपर से ना अटेम्प्ट टू मर्डर केस ना आप वापस ले लीजिए प्लीज। सॉरी मिस्टर लूथरा, जिसने केस किया है वही केस वापस ले सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। प्लीज इंस्पेक्टर। शौर्य भी ना कभी भी कुछ भी कर देता है। राजवीर, चोरी का तो पता नहीं, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर का केस वापस लेने की बात मैं जरूर करूंगा। I'll try my level best. क्या हुआ मिस्टर लूथरा, आप नजरें क्यों चुरा रहे हैं? आंखों में आंखें डाल के बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं कि तुमने चोरी की है या नहीं की। इंस्पेक्टर, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। राजवीर के साथ ना थोड़ा ठीक से बिहेव कीजिए प्लीज। आप शाउट मत कीजिए इसके साथ, थोड़ा जेंटली बिहेव कीजिए इसके साथ। ये कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, इट्स जस्ट अ ऑर्डिनरी मैन। ठीक है, थैंक यू सो मच। यार ये बाइक को भी अभी खराब होना था क्या? अगर हमें पता होता ना कि ये खराब हो जाएगी तो मैं तो सृष्टि के साथ ऑटो पे ही निकल जाती। अब पता नहीं गुरप्रीत दी का क्या हाल होगा। प्रीता जी रुकिए, मैं ठीक कर रहा हूँ ना। मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। रुकिए, आप टेंशन मत लीजिए। तू तो कब से कह रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। कितनी देर हो गई? रुक जा, मैं ऑटो ही देखती हूँ। अब अरे इसमें तो कोई बैठा हुआ था पहले से ही। अब यहाँ पर कोई ऑटो भी नहीं मिलेगा। अब हुआ कुछ? नहीं प्रीता जी, आप रुक जाइए, आप यहीं पे रुकिए, मैं ऑटो ढूंढता हूँ। अरे रुक जा, तू बाइक ठीक करने की कोशिश कर, मैं ऑटो ढूंढती हूँ। अब रुकिए, मैं ढूंढता हूँ। हाँ आगे तुम लोग काफी देर लगाती, क्या हुआ बेटा? करण, आ गए दोनों? क्या हुआ वहां पे? क्या हुआ पापा? हमें केस फाइल करना है, आप रिपोर्ट लिखिए। वाओ मिस्टर लूथरा, दैट्स ग्रेट। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल करके गया आपका बेटा मुझ पर। अब इससे बड़ा और कौन सा केस है जो आप मुझ पे फाइल करना चाहते हैं? अटेम्प्ट टू मर्डर? जी हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर।
बताइए ना क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम वहां गए थे और वहां शौर्य! करण, बेटा शौर्य घर पे नहीं है। मैंने उससे फोन किया था, वो सैंडी के घर पे और आज रात को वहीं रुकेगा। करण, राजवीर के केस का क्या हुआ पुत्र? कोई निधि, तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो? तुम पूछ रही थी ना क्या हुआ? मैं तुमसे बोल रही हूँ कि राजवीर के केस का क्या हुआ। करण, कुछ बताओ तो सही। मॉम, जितना दिख रहा है ना ये केस, उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये वाला केस। क्यों कॉम्प्लिकेटेड? मतलब? देखिए, मैं जानती हूँ राजवीर भाई को, वो गलत इंसान नहीं है, वो ये सब नहीं कर सकते। काव्या देखो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो सच है वो सामने आ जाएगा। वो ऐसा नहीं कर सकते, आपको उन्हें बचाना होगा बस। आपने डैड को क्या कहा? वो आपके लिए इतने सपोर्टिव क्यों हो रहे हैं? शौर्य, मैंने कहा ना तुम गुस्से में हो, तुम कुछ नहीं समझोगे, जाओ यहाँ से। आप लोग कर कैसे लेते हो ये सब? हाँ, पहले मेरे पीठ पीछे जाके बुरा करो, फिर मेरे सामने आके रोने का नाटक करो। शौर्य, ये क्या तरीका अपनी बहन से बात करने का? तो आपको भी क्या जरूरत है लॉयर को फोन करने की? मतलब ये कि मैं अभी डिटेल्स नहीं दे सकता इस बारे में, कल बात करते हैं। पापा, ये रॉन्ग है, मुझे अभी बात करनी है। देखो बेटा, तुम्हारे किसी भी सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है जो तुम्हें खुश कर सके, इसलिए मैं कह रहा हूं इस बारे में कल बात करते हैं, अभी जाकर सो जाओ। कल सुबह बात करते हैं। गुड नाइट। आप लोग भी जाके सो जाइए, रात बहुत हो गई है। वैसे भी लॉयर का कॉल कल मॉर्निंग में ही आएगा, तभी पता चलेगा कि केस की सिचुएशन क्या है। गुड नाइट। काव्या, पुत्र चल। सृष्टि, तू पहुंच गई? दी, अब आ गए। हाँ, गुरप्रीत दी कैसी है? ठीक है ना? अरे तू टेंशन में दिख रही है, बता ना गुरप्रीत दी कहाँ है? अरे आप आ गए? वो गुरप्रीत दी, आप ठीक हैं? आप बाहर से आए हैं? हाँ, मैं वो गई थी ना वकील का पता करने वीर जी और पलकी के साथ। लेकिन मेरा छोड़ो, ये बताओ कि राजवीर पुत्र कैसा है? हैं? कुछ हुआ नया केस में? कुछ बताओ। प्रीता जी जल्दी बाइक में बैठिए, बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई घर पे। मम्मी गिर गई है और उन्हें बहुत चोट लगी है वहां पर। आप ठीक हैं? मुझे तो बोला था कि आप सृष्टि, गुरप्रीत दी तो ठीक है, तो मोहित ने ऐसे क्यों बोला कि वो बेहोश हो गई हैं या उन्हें लग गई है, गिर गई हैं? अरे मुझे खुद नहीं पता ये सब क्या हो रहा है दी। आप जो सोच रहे हो ना, मैं भी बिल्कुल वही सोच रही हूँ कि सब वो क्या रहा है। अरे मोहित का फोन आ रहा है, पर ये तो आप लोग के साथ गया था ना, तो आप लोग के साथ वापस नहीं आया? अरे माँ, आप तो गिर गई थी ना, आप क्यों खड़े हो? आप बैठो। नहीं, आप ठीक हो? आपको कहाँ लगी? आप पागल हो गए क्या? अब मैं ठीक हूँ, मेरे को कहीं नहीं लगी है। क्या बोले जा रहे हैं? ऐसे आपको कहना है। क्यों कहना है? मैं जब गिरी नहीं तो क्यों बोलूं मैं गिरी हूँ? अरे मोहित, तू और दी तो मैं मुझसे पहले निकले थे ना, तो इतना लेट कैसे हो गया? अब देखो बताओ यार, मैं पहले आ गई, उसके बाद दी आए, उसके बाद गुरप्रीत जी आए और उसके बाद तू आ रहा है। मेरे ख्याल से गुरप्रीत जी जहाँ गई थी शायद वहां गिरी होंगी, है ना मोहित? हाँ वहाँ। मोहित, ये क्या हो रहा है? तुमने तो मुझे कहा था कि गुरप्रीत दी की तबीयत ठीक नहीं है, वो गिर गई हैं, और इतनी जल्दी जल्दी में मुझे वहां से यहाँ ले आए, जबकि मुझे कुछ काम भी था। क्यों किया तुमने ऐसा? बेब्स, तो अगर आज रात यहीं रुक रही है तो सर्वेंट को बोल के गेस्ट रूम रेडी करवा दूं? नो थैंक्स, मैं घर जाऊंगी। मैं तो बस यहाँ अपनी भड़ास निकालने आई थी। भड़ास? अब क्या हुआ? बहुत बड़ा ब्लास्ट।
तुझे पता है, आज पुलिस स्टेशन में मुझे प्रीता मिली और उसने मेरा हाथ ट्विस्ट कर दिया। What? प्रीता ने जस्ट अ सेकेंड, कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि तूने करण से शादी कर ली है और इसलिए वो ये सब कर रही है? नहीं यार, करण का तो उसने नाम भी नहीं लिया। बट एक बात तू सही कह रही है, जिस अग्रेशन से उसने मेरा हाथ मोड़ा था ना कोई बात तो जरूर है। और तुझे पता है, उसने मुझे एक और शौक दिया। कैसा शौक? उसने कहा कि राजवीर उसका बेटा है। What? राजवीर प्रीता का बेटा है? हाँ, राजवीर प्रीता का बेटा है। कहा था ना मैंने तुझे कि इन दोनों के बीच जरूर कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई रिलेशन डेफिनेटली है। अब देख, आ गया सच सामने। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी बड़ी बात राजवीर ने करण से क्यों छुपाई? उसे क्यों नहीं बताया? और एक बात, आज मैं सृष्टि को भी मिली। लूथरा हाउस के बाहर खड़े होकर लूथरा हाउस पे पत्थर फेंक रही थी, कांच की विंडो तोड़ दी। ये तो अच्छा है कि मैंने सही टाइम पे सब कुछ हैंडल कर लिया, सब बचा लिया। बेब्स, वो सब तो ठीक है कि तूने आज सब कुछ संभाल लिया और वो एक दूसरे को मिल नहीं पाए, लेकिन कल जब वो एक दूसरे को मिलेंगे फिर नहीं मिलेंगे। प्रीता के दिल में अब लूथरास के खिलाफ, करण के खिलाफ बहुत नफरत है। वो लोग इस घर में वापस नहीं आना चाहते। मुझे तो बस टेंशन इस बात की है कि जब करण को सब सच पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो तू क्या चाहती है? करण कल कोर्ट ना जाए? एक्चुअली ना, पहले मैं चाहती थी कि प्रीता और करण ना मिले, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि वो दोनों मिले। प्रीता के दिल में अब बहुत नफरत है और उस नफरत के साथ जब वो करण के सामने आएगी तो करण का ईगो हर्ट हो जाएगा और फिर पहले की तरह वो उसे अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक देगा। उसे रोकेगा नहीं।